होता है, जैसे बवासीर हो गया, ये इस तरह की जो बीमारियां होती है, काफी लोग का ना जैसे एक परसेप्शन हो जाता है, मे बी एक मिथ है लोगों के दिमाग में कि ये काफी पेनफुल होता है, या फिर आप इसको सस्टेन नहीं कर पाओगे, या पता नहीं क्या। ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? I'll agree with the so minimally invasive procedure मैं करता हूँ, उसके अंदर I can vouch for the amount of pain that is going to be really less. But अगर काट पीट के करनी पड़ी सर्जरी, yes it is very painful because that area is sensitive and वहाँ पे फिर काटना है, ड्रेसिंग करना है, every day in the morning you're going to. Another problem with these diseases is it screws up your life in a way because every morning you poop and you're going to have pain. Yes. This is before surgery I'm talking about. और वो पेन का दिमाग में लेके पूरे दिन बिगड़ता है. People will be, you sit with that pain in your car, you're going to be a rash driver, an angry driver. You go to your office, you're going to be an angry boss. खोपड़ी किसकी रहेगी, दर्द होगा तब तक. And people live with that and they do not seek surgery. That was because जो conventional surgery होती है, दो उसमें काटते हैं, फिर सिलाई होती है, that is going to cause a lot of pain. But अब जो surgeries मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर there is minimal amount of pain. In fact, my patients, a lot of my patients, lot of them join work on the 3rd day of surgery. So आज सर्जरी हुई, 3 दिन में, कल परसों आराम किया, तीसरे दिन पे they are at work. That is, yes, discomfort रहेगा, जादू नहीं किया है, सर्जरी करी है. I need to mention this because there are a lot of MBA people selling the procedure through certain online services. They will sell anything. अरे सर 100% हो जाएगा, कुछ दर्द नहीं होगा, बिल्कुल जीरो ब्लीडिंग होगा. No, that does not. मैजिक नहीं कर रहे, आपके बॉडी पे भी are doing something. So discomfort होने वाला है. सर्जरी हो रही है. But I'm surprised the number of people fall for that. But anyways, so yes, pain was a factor that made people avoid coming to us. But now I assure you, like 80% of the cases, उसके अंदर मिनिमली इन्वेसिव में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है. एंड so 20% में, so when a patient comes to us, our goal is कि इसको ये बीमारी फिर से नहीं होनी चाहिए. The modality that we use is going to be on our judgment कि इसको, मुझे पेशेंट को ये ट्रीट कर देना है, ये फिर से नहीं होना चाहिए. So there are 20% of cases where minimally invasive surgery is not applicable. Lasers बोलते हैं minimally invasive surgery को, lay people call it laser surgery. So yes, hemorrhoids में, fissures में excellent results. Fistulas में, again, it's not purely laser में recurrence rates are very high. So I take a hybrid approach, like the word you used earlier. So there is a minimal surgical involvement, a little bit of laser involvement, and eventually you get a good lifetime result. वहाँ की जो एरिया की एनाटॉमी है, वो जो सर्जरी से पहले थी, वो उससे काफ़ी मिलती जुलती रहेगी पोस्ट सर्जरी. काटने में तो क्या है, वो सारा एरिया, सारा ग्लैंड चले जाते हैं, वहाँ के सिक्रेशंस चले जाते हैं, तो ड्राई रीजन रहता है. सो देयर इज़ ऑलवेज अ डिस्कम्फर्ट एंड स्क्रैचिंग दैट हैपन्स. वो सब मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स में यू आर नॉट गोइंग टू बी फेसिंग दैट. एंड इवन पाइलोइडल साइनस है. सो अर्लियर द सर्जरी वॉज कि पेशेंट महीने भर तक उल्टे लेटे रहते थे बिकॉज इट्स ऑन द बम, एंड वी ओपन दैट प्लेस और फिर उसको रेगुलर ड्रेसिंग्स के लिए आते थे. नाउ एक 7 mm का छेद होता है, उसके अंदर से मेरा कैमरा जाता है, एंड देन I do what I do. Piloidal sinus के बाद भी, like 3rd day, patients join work and then they come for follow-up after work. But by the end of the month, things are good. बाकी पहले तो ये सब चीज़ों के लिए लोग बाग महीना भर तक छुट्टी लेना पड़ता था वर्क से.
So it's the advent of new टेक्नोलॉजी technology कह सकते हैं. that has enabled us to even robotic surgeries जो कर रहे हैं. पहले ओपन में lot of pain, फिर laparoscopic surgeries आई. laparoscopic surgeries में भी there was a technical aspect कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो सीधा रहता है, it does not bend. तो अंदर गया इंस्ट्रूमेंट, फिर आई हैव टू बेंड द इंस्ट्रूमेंट, जिसके वजह से मसल इधर उधर खींचते हैं, एंड दैट बिकम्स अ लिटिल बिट पेनफुल. अब रोबोटिक सर्जरीज आ गई है, इंस्ट्रूमेंट अंदर जाता है एंड द रोबो इज अ स्लेव रोबो. देयर इज अ मिसकंसेप्शन दैट द रोबो डज अ सर्जरी बाय देमसेल्व्स. नो, इट्स अ रोबोट assisted surgery where the surgeon is doing and that's a slave robo. तो उसके अंदर पेट के अंदर एब्डोमेन के अंदर जाता है and the instrument moves about. Instead of me moving the instrument stays where मैनुअल it is. मैकेनिकल वो मतलब वो कम हो गया. हाँ वो उससे- exactly. So technology is making life a lot easier. AI की बात हुई थी और रोबो की बात हुई, then let me bring this up that there's a company called Da Vinci and it has incorporated AI in their current latest model, जो अब इंडिया में कहीं पे नहीं है. It's in the US में भी launch हो रहा है I think. So they are going to be having AI capabilities. So yes, that is coming in the surgical field as well. So वो mindset पहले का, you have to change that mindset कि अब पहले शायद स्कूल में साइकिल पे जाता था, आज आपके पास मर्सिडीज से लेकर जीप से लेकर अनेकों ऑप्शन है, कंफर्ट है. सो दैट सेम थिंग हैज हैपेंड इन आवर फील्ड. जो पेशेंट का पेन है, बेटर रिजल्ट्स है, ये सब It's an It's there. enabler. enabler. So you do not have to live with those problems. Living with those problems. There's a lot of myths involved with these procedures. The most common of them is, सर ये ऑपरेशन कराने के बाद वहाँ का कंट्रोल चला जाता है. Well, to those people who have lost controls, I'll tell them that there was a quack who did whatever that he did, or an untrained fellow who did not know what the basic thing was. ऐसे कोई आपके पहचान में हो तो bring them to me. I can fix it. Definitely. But कोई ढंगा प्रॉपर सर्जन है जो अच्छी तरह से कर रहा है, उसको पता है क्या नहीं काटना है, तो you do not lose control. Second myth that we have is कि एक बार हो गए फिर से होते रहेंगे, सर्जरी करा लो तो भी. To that I'll want to tell people that आपकी बीमारी मसे की नहीं है, आपकी बीमारी कॉन्स्टिपेशन की है. जो स्टूल्स प्रॉपर नहीं बन रहे, दैट इज योर डिजीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिजीज दिस इज अ सिम्टम. ये बाहर निकले मसे, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस डिजीज. तो मैं तो आपको मसों का ट्रीट करके दे दूंगा, आपको समझाऊंगा भी कैसे स्टूल सॉफ्ट रखे, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करनी है. बट इफ यू डोंट फॉलो दैट एडवाइस तो सर्जिकल तो वो दैट सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इवन आफ्टर द सर्जरी. करानी पड़ेगी. यस, तो अगेन डॉक्टर जादू नहीं करता. जो दिक्कत हुई है डॉक्टर उसको भगवान ने जैसा बनाया वैसा रिस्टोर करने का ट्राई करता है. बट हैबिट्स वगैरह तो आपके हाथ में ही है. सो अगेन आई टेल माई पेशेंट्स कि आप गारंटी दीजिए आपका स्टूल सॉफ्ट रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ तो कि आपको ये फिर से नहीं होगा.